નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીનો પાઠ બીજો જોવાના છીએ, જેમનું નામ છે ન્યાય મંત્રી। મિત્રો, તમે કોમેન્ટ એવી ન કરતા કે પાઠ પહેલો કે શું કામ આપેલો નથી, કારણ કે મિત્રો પહેલું કાવ્ય છે। તમામ પાઠો પૂરા કરીને આપણે કાવ્યની શરૂઆત કરશું। પહેલા બધા પાઠ એટલે કે કહાની, નિબંધ, લખન જે એવું કંઈ છે તે બધું જોઈ લેશું અને ત્યારબાદ આપણે કાવ્યો જોશું। શું કામ? તો કે કાવ્યની મિત્રો સમજૂતી પણ વ્યવસ્થિત રીતના જોવી પડે, એટલે કે એને મેં છેલ્લે રાખ્યા છે। પહેલા બધા પાઠ જોઈ લઈ સેમ 1 ના, પછી સેમ 1 ના બધા કાવ્યોની શરૂઆત કરશું। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમામ મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સુધી આ વિડીયોને શેર કરો। અને હા મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરી અને બેસ્ટ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મને સારી લાગતી કોમેન્ટોને હું હાર્ટ જરૂરથી આપું છું, એટલે કે બેસ્ટ કોમેન્ટ જરૂરથી તમે કરજો। ચાલો મિત્રો, આપણે આ પાઠની વધારે ટાઈમ ન બગાડતા શરૂઆત કરીએ। પાઠના લેખકનું નામ, પાઠ કયો? ન્યાય મંત્રી। પાઠના લેખકનું નામ શ્રી સુદર્શન, જેમનો જન્મ ઈસવીસન 1968 થયો, નિધન જેમનું ઈસવીસન 1968 થયું છે। જોઈએ આપણે, સુદર્શન જી કા મૂળ વાસ્તવિક નામ બદ્રીનાથ શર્મા था। એટલે શું કે છે કે સુદર્શનજી છે એમનું મૂળ વાસ્તવિક નામ, સાચું નામ એનું બદ્રીનાથ શર્મા છે। आपका जन्म 1896 में हुआ है, એટલે કે ઈસવીસન 1896 માં તેમનો જન્મ થયો છે। राज्य के सियालकोट नामक स्थान, राज्य पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान એટલે કે पंजाब राज्यના सियालकोट नामनी जगह તેમનો જન્મ થયો છે। बचपन से ही अपने कहानियां लिखने का आरंभ किया था, એટલે કે બચપનથી, નાનપણથી જ તેમને કહાની એટલે લખવાનો એટલે કે વાર્તાઓ, નિબંધ, લેખન લખવાનો આરંભ કર્યો છે, શરૂઆત કરી છે। પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિवर्तन, पनघट, नगीना आदि अपके सुप्रसिद्ध कहानियां संग्रह है, એટલે કે આ બધા જે નામ બોલ્યો તે બધા એમના સુપ્રસિદ્ધ કહાની સંગ્રહો છે। આપકા એકમાત્ર ઉપન્યાસ છે, આનો એકમાત્ર ઉપન્યાસ પણ છે, જેમનું નામ છે ભાગવંતી। હવે મિત્રો, આ પાઠમાં શું કહેવા માગે છે એમનું સારાંશ આ પેરેગ્રાફમાં આપેલો છે, એટલે કે આ સારાંશ વાંચીએ તો આપણને આ પાઠ સમજવો સાવ સહેલો પડી જાય। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। आ वार्ता में એવું કીધું છે કે સમ્રાટ અશોક છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ ન્યાય મંત્રીની ખોજમાં હતા, એટલે કે ન્યાય મંત્રી ગોતતા હતા, એવા ન્યાય મંત્રી જે સર્વશ્રેષ્ઠ હોય તેવા न्याय मंत्री ગોતતા હતા। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। शिशुपाल आरे मुलाकात थई कोनी? तो कि सम्राट अशोकनी। पछी मित्रों एनी योग्यता जोई अने मित्रों एमने न्याय मंत्री बनाववामां आव्या। न्याय न राजा देखता है न रंग, એટલે કે ન્યાય છે મિત્રો એ ન તો રાજા કે પ્રજા કોણ છે કોઈનામાં ભેદભાવ કરતા નથી। ન્યાય મંત્રી હોય એના માટે રાજા પ્રજા બધા સમાન। રાજાની ભૂલ હોય તો એમને પણ યોગ્ય દંડ કરવામાં આવે, પ્રજાની ભૂલ હોય તો એમને પણ યોગ્ય દંડ કરવામાં આવે। કોઈ પણ અધિકારી હોય તો નિયમ મુજબ એને પણ દંડ કરવામાં આવે, એના માટે બધા જ એક સમાન હોય છે। ન્યાયતંત્ર પર વિશ્વાસ દિલાने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है कि न्यायतंत्र ऊपर अपना सौनो विश्वास વધે એવી મિત્રો એવી વસ્તુ આમાં કીધી છે, એટલે કે એનો પ્રયાસ કર્યો છે એમને। અને નई પેઢી के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। જોઈએ હવે આપણે પાઠ। संध्या का समय था, संध्याનું टाणું હતું। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, चारे बाजू अंधकार फैलाई गयो तो ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। એટલામાં જ બહારથી કોકે દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खुलते हुए पूछा। थोड़ोक ज दरवाजो ब्राह्मण शिशुपाले खोल्यो અને પૂછ્યું કે ભાઈ કોણ છો?
एक परदेशी बहार से अवाज आई, बहार थी अवाज आव्यो कि हूँ एक परदेशी छूँ एटले के बीजा देशथी एटले के बीजा राज्यथी आव्यो छुं। त्यारे मित्रों राजा परदेशी कोने कहेवामां आवतुं? बीजा देशना होय तेने तो परदेशी कहेता हता, परंतु मित्रों त्यारे जे बीजा राज्यना होय तेमने पण मित्रों परदेशी कहेता हता। दाखला तरीके सम्राट अशोकनो जे विस्तार छे, जेटलो जीतेलो एमनो पोताना पासे विस्तार छे, एना सिवायना विस्तारवाळा लोकोने पण परदेशी कहेता हता। એટલે કીધું કે एक परदेशी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? શું મને રાત ગુજારવા માટે અહીંયા જગ્યા મળશે? એમ બહારથી પરદેશીએ પૂછ્યું। ऐसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। जेम शिशुपाले एटले के जेवो शिशुपाले दरवाजो खोल्यो एवो सामे एक नव युवक एटले के युवान मानस उभो तो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। शिशुपाल ने हसता मुखे कीधुं कि आ तो मारुं सौभाग्य छे, अतिथिना चरण जो आ मारा घरमां पड़शे तो मारुं घर पवित्र थई जशे। शुं काम? तो कि अतिथि देवो भवः। आइए पधारिए, आओ पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि ने लई अने शिशुपाल घर में गया, मेहमान ने लईने शिशुपाल घर में गया अने शिशुपाल आ मेहमान नु आदर सत्कार करियो। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। पछी बे जना देशनी जे हालनी व्यवस्था हती तेना उपरथी वातो करवा मांड्या, वातो करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कीधुं कि आजकल बहुत अन्याय थाय छे, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। एटले के परदेशी आ वातथी सहमत न हतो, सहमत न था। वह बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके निकालना कठिन है। एक बीजानो भूल काढवी, बीजानो वाक काढवो आ तो सहेलुं छे, परंतु कांईक करवुं ए अघरी वस्तु छे। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय कैसे किसे कहते हैं। शिशुपाले कीधुं कि जो मने मौको मळे तो हूँ बतावी दऊं कि न्याय कोने कहेवाय। तो आप अवसर चाहते हैं? मेहमाने पूछ्યું, શું તમે अवसर मांगो छो? आए कीधुं कि हाँ अवसर चाहता हूँ। कि हाँ भाई મને एक मौको मळे तो करूँ, मौको मांगू छू। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, पछी एक पण जातनो अन्याय नहीं थाय के? आ के बिल्कुल नहीं। मेहमाने पूछ्યું पछी शुं एक जातनो अन्याय नहीं थाय? आ भाई के बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा नहीं कि। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी हंसता मुखे कह्યું क्या बहुत अघरू काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का दंड बजाकर दिखाऊंगा। कि ब्राह्मण माटे काई पण वस्तु अघरी नथी, काई पण वस्तु कठिन नथी। हूँ न्यायनो दंड बजावीने देखाड़ी दईश, एटले के न्यायनो दंड वगाड़ीने बतावी दईश। परदेशी धीरे से मुस्कुराया। जे परदेशी हता ए धीमेकथी एने हस्યું एटले के मोढुं मलकाव्युं, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। पछी कांई बोल्या नहीं। थोड़ी વાર पछी ते सूई गया। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। सवारे उठा, परदेशीए शिशुपाल ने धन्यवाद कीधो। शुं काम? तो के आखी रात एमने आ शिशुपालना घरे रोकावा दीधो तो एटले परदेशीए शिशुपालने आभार एमनो व्यक्त कर्यो कि भाई तमारो खूब खूब आभार कि तमे मने आखी रात रोकावा दीधो छे। पछी भाईजी परदेशी हता ए भाई त्यांथी विदाय ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ ही सिपाही आए। थोड़ाक दिवस पछी शिशुपालनी घरे थोड़ाक सिपाही एटले के सैनिकों आव्या और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल ने कीधुं कि हाल भाई मारा भेगो दरबार में चाल। शिशुपाल सहम गए, एटले के आम आश्चर्यचकित थई गया कि मैं शुं कर्युं ते मने दरबार में बोलाव्यो छे। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। ईसाई ने समझाणुं ज नहीं कि सम्राटे शुं काम मने बोलाव्यो छे। कहीं इस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। एने पछी विचार आव्यो कि जी ओला परदेशी मारी घरे आव्यो तो एने तो सम्राट ने थोड़ी एने सम्राट ने कई शिकायत तो नत करी दीधी, एटले के मारी कई भूल तो खोटी साची नत कही दीधी। तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में जेवो शिशुपाल गयो एनो कलेजू एटले के काळजू धड़कवा मांड्યું। शुं काम? तो कि जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। त्यारे एने जोयुं कि आज परदेशी हता ए ज सम्राट अशोक छे। एने जोयुं तेनुं हृदय धड़कवा मांड्યું। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट बोला कि हे ब्राह्मण देवता हूँ तमने एक न्यायनो मौको आपवा मांगू छूं, न्याय का अवसर देना चाहता
चाहता हूँ, आप तैयार है? शू तमे तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराए, पहला तो शिशुपाल घबराई गया। फिर बोले कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, कि जो सम्राटनी आज इच्छा है तो हूँ तैयार छू। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राटे कीधु कि बहुत ठीक कि काल थी तमे न्याय मंत्री छो। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहनाड़ी। सम्राट बोला अने सम्राटे हाथ माथे वींटी उतारीने शिशुपाल ने पहरावी दीधी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। जी मित्रों, आ वींटी हती, अंगूठी हती, आ सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी, એટલે કે सम्राट अशोक ની राज मुद्रा हती। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। हवे शिशुपाल न्याय मंत्री हता। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, એટલે કે જે રાજ્યની વ્યવસ્થા સરખી કરવાની શરૂઆત કરી દીધી। उसके सुप्रबंध से, એટલે કે વ્યવસ્થિત કાર્યોથી राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। आखा राज्य में पूरी तरफ शांति फैलाई गई। किसी को किसी प्रकार का भय न था, कोई ने एक पण जातनो भय न हतो। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लोग दरवाजे मित्रों खुला मूकी देता था। चारों तरफ न्याय मंत्री के शुभ प्रबंध और न्याय की धूम मच गई। એટલે કે ચારે બાજુ આ જે ન્યાય મંત્રી છે એની સુપ્રબંધ એટલે કે એના કાર્યથી અને એના ન્યાયથી ધૂમ મચવા માંડી। આગળ જોઈએ, लगभग 1 महीने बाद, 1 महीनो थियो भाई ने आज एक पद संभाळ्यानो, 1 महीनो थियो। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। कोके राते एक पहरेदार એટલે કે एक चौकीदार ની हत्या કરી દીધી, એમને મારી નાખ્યા। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सवार થઈ અને આ વાત ચારે बाजू चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। लोग हैरान હતા कि शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। शिशुपाल ने तो नींदर ज उड़ी गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। એને ખાવા પીવાનું જમવાનું છોડી અને अपराधीને ગોતવા માટે रात दिवस एक કરી દીધા। बहुत प्रयत्न करने के बाद अब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ઝાઝા દિવસો પછી अपराधीની खबर पड़ी कि कौन अपराधी હતું। તે જાણ્યા પછી શિશુપાલને તો આશ્ચર્યનો ઠેકાના ન રહ્યા, એટલે કે આશ્ચર્યનું કોઈ ઠેકાણું જ ન રહ્યું। ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થયા। સ્વયં સમ્રાટને इस पहरेदार की हत्या की थी, એટલે કે ખુદ સમ્રાટે જ આ પહેરેદાર છે એને એની હત્યા કરી હતી। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। सम्राटने अपराधी घोषित करવું એટલે કે એમને अपराधी માનવું, એને अपराधी તરીકે સ્વીકાર કરવું બહુ જ અઘરું કામ હતું। शिशुपाल करे तो भी क्या करे, शिशुपाल करे तो करे शू। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक तरफ ही न्याय मंत्री हता तो बीजी तरफ ही सम्राट ना सेवक हता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्यायनी दृष्टि में मित्रों सम्राट अने साधारण व्यक्ति, राजा अने साधारण व्यक्ति में एक पण जातनु अंतर होतुं नथी। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। આગળના દિવસે એટલે કે પછીના દિવસે शिशुपाल दरबार में गया। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक से सिंहासन पर बैठा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। आवीने ने शिशुपाल ने पूछा कि अपराधी का पता चला, शू अपराधी नो खबर पड़ी? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक ने कीधुं कि हाँ भाई खबर पड़ी गई। तो फिर इसे उपस्थित करो, कि तो अपराधी ने उपस्थित करो, या सामे लई आओ अपराधी ने। न्याय मंत्री कुछ रुके, थोड़ी बार उभा रहा। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, એટલે કે એના જે ઉપલા અધિકારી હોય તેમને સંકેત કર્યો, એટલે કે ઈશારો કરી અને બોલ્યા કે ધનવીર उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। અને કીધું કે ભાઈ ધનવીર એને गिरफ्तार कर ले, હું તને આજ્ઞા આપું છું। સંકેત सम्राट की ओर था, એટલે કે ઈશારો કર્યો હતો। ઈશારો सम्राट तरफ હતો, राजा तरफ હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। कोई कांई बोले नहीं, साव शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट खूब ज गुस्से थया। एनो चेहरो गुस्सा थी लाल चोर थई गयो। वे सिंहासन से खड़े हो गए, सिंहासन मांथी उभा थई गया मित्रों ते, और बोले कि इतना साहस, तारू आटलू बधु साहस के तू मने दोषी ठहरावे छे? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया
जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्रीए एवो भाव प्रकट कर्यो कि एने कहीं सांभळ्युं ज नथी ने। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो। एने एना शब्दों ने पाछो दोहरायो कि धनवीर तू जोवे छो शुं, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी ने तू गिरफ्तार कर। उससे उसी ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। आज समये सम्राटना हाथ में हथकड़ी पहेरावी दीधी जी, हाथकड़ी होई पहेरावी दीधी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्रीए कीधुं कि अशोक तारा ऊपर आज पहरेदार की हत्या नो आरोप लगावामां आवे छे, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तू आनो शुं जवाब दे छो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्रीए पूछो कि शू तू आ तारो अपराध स्वीकार करे छो? एने कीधुं पछी के हाँ मैं उसे मारना, मैंने उसे मारा अवश्य है कि हाँ मैं ज एने मार्यो छे, पर अदंड था। कि पर अदंड हतो। सम्राट का उत्तर था, वह अदंड था या नहीं? कि सम्राट नो जवाब हतो कि वो अदंड था। तो आए कीधुं कि भाई वो अदंड था कि नहीं, एटले कि ई अदंड हतो कि नहीं। तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है कि भाई ते एक कर्मचारी की हत्या करी छे, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है कि तू ज एक अपराधी छो, तने मृत्युदंड देवामां आवशे। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्रीए निर्णय आप्यो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में साव शांत थई गई, सन्नाटो छवाई गयो, कोई कांई बोले नहीं। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री नो निर्णय सांभळी अने सम्राटे आम सिर झुकावी दीधुं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे कि आ छे शिशुपाल की परीक्षा में सफल थई गया था। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। सम्राट नु हृदय छे ए एवा शिशुपाल जेवा व्यक्ति ने मळ्या એટલે કે એમનું હૃદય ગદગદ થઈ ગયું હતું। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। त्यारे ज आ न्याय मंत्री नो इशारो जोई अने एक कर्मचारी छे ई सम्राट अशोकनी एटले के राजा अशोक एटले के अशोक राजानी सोनानी मूर्ति लई अने त्यां हाजर थयो, उपस्थित हो गया एटले के त्यां हाजर थयो। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा। न्याय मंत्रीए ऊभा थईने कीधुं के सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। कि सज्जनों ये साची वस्तु है कि हूँ न्याय मंत्री छूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। आ वस्तु पण साची है कि अपराधी ने दंड मळवो जोईए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। परंतु अपराधी कोई बीजो नहीं, परंतु स्वयं राजा अपना एटले के स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा ने ईश्वर गण्या है, एटले के ईश्वरनुं रूप मानवामां आव्युं छे, भगवाननुं रूप मानवामां आव्युं छे, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। एटले एने खाली ईश्वर ज दंड दई सके छे। एत एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। हूँ आज्ञा एवी दऊं छूं कि सम्राट ने चेतावनी दईने छोड़ी देवामां आवे। चेतावनी छे नहीं कि भाई बीजी वार रवि ताराथी भूल थावी जोईए नहीं, छोड़ी देवामां आवे, पर उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। कि ने सम्राटनी जग्याए सोनानी मूर्ति ने फांसी पर लटकावी देवामां आवे, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले और आमांथी लोगों ने पण कंईक शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। आ न्याय मंत्री नो न्याय सांभळी अने लोग जय जयकार करवा मांड्या। मित्रों, जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले। त्यारे बधाई वया गया त्यारे आज शिशुपाल है अने राजमुद्रा सम्राट अशोकनी सामे राखी दीधी अने बोल्या कि महाराज यह मुद्रा वापस ले ले। कि महाराज आ मुद्रा तमे वापस ले लियो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। माराथी आज बोझ है, आ भार से नहीं उठावाय। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। एटले के राजा अशोके एमनी सन्मान भरी दृष्टिथी एमनी सामे जोई अने गदगद कंठ एटले के गदगद अवाजथी कह्युं कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तमे तो मारी आंखों खोली दीधी है, आंखों खोली दीधी छे। आपका साहस प्रशंसनीय है, तमारो साहस ई प्रसन्नता ने पात्र है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता।
એટલે કે જે આ ભાર છે એ તમારા સિવાય કોઈ ઉપાડી શકે તેમ નથી. ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગઈ, એટલે કે ન્યાયમંત્રી પાસે કંઈ બોલવાનો જવાબ જ હતો નહીં. આની સાથે સાથે આપણો પાઠ પૂર્ણ થયો નથી. શું કામ? તો કે શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી જોવાની બાકી છે. સૌભાગ્ય એટલે કે સદનસીબ, સુગમ એટલે કે સરળ, અવસર એટલે કે મોકા, રાજમુદ્રા એટલે કે રાષ્ટ્ર કે નિશાની, સુપ્રબંધ એટલે કે સુવ્યવસ્થા, અદંડ એટલે કે અવિવેકી, નિસ્તબ્ધતા એટલે કે શાંતિ. મુહાવરે જોઈ લઈ તો કે સહમ જાના, આશ્ચર્યચकित हो जाना, काले कलेजा धड़कना એટલે કે ચિંતિત હોના, धूम मच जाना એટલે કે प्रसिद्ध हो जाना, एक दिन एक रात दिन एक करना એટલે કે कड़ी मेहनत करना, होठ काटना એટલે કે आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना એટલે કે लिज्जत होना, गदगद हो जाना એટલે કે भाव विभोर हो जाना, आंखें खोलना એટલે કે सही परिस्थिति समझाना. આની સાથે સાથે હવે આપણો પાઠ સંપૂર્ણ રીતના પૂર્ણ થયો છે. શું તમારે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોતા છે કે નહીં? સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબનો વિડીયો તમારે જોતો છે કે નહીં? કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી મિત્રો જણાવો. અને જો મિત્રો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો. અને મેં કીધું છે તેમ મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરી અને બેસ્ટ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે મિત્રો તમારી કોમેન્ટોમાંથી મને જે બેસ્ટ કોમેન્ટ લાગે છે તેને હું હાર્ટ જરૂરથી આપું છું, એટલે કે બેસ્ટ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. Thank you.